Hello students, welcome to Winsome Digital Platform of Winsome International School. Today we are starting with our session of chapter number 1 of class 7th SOF series. So today our topic will be photosynthesis and the name of the chapter was nutrition in plants and animals. We were learning about this. Okay, so the topic for today will be photosynthesis. See, to show that starch is formed during photosynthesis in presence of sunlight. The topic is we will do an experiment regarding this to show that starch is formed during photosynthesis in presence of sunlight. So what happens? See, two green potted plants are taken and one of them is labeled as A and one of them is labeled as B. Pot A is kept in dark and pot B is kept in sunlight for 3-4 days. What we did, हमने दो potted plants लिए, pot A and pot B. What we did now, in dark हमने उसको dark में रखा, दोनों pot A को dark में रखा और pot B जो था उसको sunlight में रखा. ठीक है, कितने days के लिए? 3-4 days के लिए रखा. Okay, pot A was kept in dark and pot B was kept in sunlight. Then one leaf from both the plant is plucked. अब दोनों से pot A से भी leaf ली and pot B से भी pluck करी leaf. Then and boiled in water for 5 to 10 minutes. 5 to 10 minutes उसको water में boil करा. After that they are boiled in alcohol in a water bath. अब क्या हुआ, उसको वाटर बाथ में जो है अल्कोहल के साथ उसको भी बॉईल करा गया. इन द प्रीवियस एक्सपेरिमेंट वी आल्सो डिड दिस, हमने सेम करा था, है ना. द लीव्स आर टेकन आउट फ्रॉम अल्कोहल, वॉश्ड इन वार्म वाटर टू रिमूव एल्कोहल. अब क्या हुआ, लीव्स जो थी उनको अल्कोहल से बाहर निकाला गया. लीव्स आर टेकन आउट फ्रॉम अल्कोहल एंड वॉश्ड इन वार्म वाटर टू रिमूव एल्कोहल. अब वापस उसको वॉश करा गया वार्म वाटर में सो दैट अल्कोहल कैन बी रिमूव्ड. नाउ अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सोल्यूशन आर एडेड. अब क्या हुआ, एक फ्यू ड्रॉप्स जो है आयोडीन सोल्यूशन के ऐड करे गए टू बोथ ऑफ देम. दोनों में आयोडीन सोल्यूशन को ऐड करा गया. लीफ ऑफ पॉट बी टर्न्स ब्लू ब्लैक. ऑफ कोर्स बात है कि जो पॉट बी था वो सनलाइट में था तो उसमें जो है फोटोसिंथेसिस हुआ तो स्टार्च का फॉर्मेशन हुआ इसलिए ब्लू ब्लैक कलर उसने शो कर दिया. इसलिए लेकिन बट द लीफ ऑफ पॉट ए डज नॉट टर्न ब्लू ब्लैक. लेकिन ब्लू ब्लैक टर्न नहीं हुई. कौन सी? पॉट ए की जो लीफ थी वो टर्न नहीं हुई. बिकॉज द प्लांट वॉज केप्ट इन डार्क. बिकॉज उस जो प्लांट था वो डार्क में पड़ा था, वहां पे सनलाइट नहीं आई एंड फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ एंड फोटोसिंथेसिस डिडंट अकर. बिकॉज ऑफ दैट द starch was not formed. Okay, hence could not produce starch. Shows that starch is formed during photosynthesis in the presence of sunlight. So we can prove that sunlight is very important for the process of photosynthesis and the photosynthesis will not occur if there is no sunlight provided to the plant, and if the sunlight will not be provided, photosynthesis will not occur, and photosynthesis will not occur, so the starch will not be formed. Okay, I hope you got this. Coming to the next one. See, to show that oxygen is released during photosynthesis, the next one is that oxygen जो है वो release होती है photosynthesis जब होता है. आपने we have already learned the plants take in CO2 to prepare their food so that the photosynthesis can occur. But if we talk about oxygen, the oxygen is released. Plants release oxygen during photosynthesis. So we will prove this. Few twigs of hydrilla plant. Which plant is taken? Hydrilla plant is taken and placed in a beaker covered with inverted funnel. एक beaker लिया गया जिसमें inverted funnel यानी कि funnel को invert करके उल्टा करके रखा गया. Then beaker is filled up to 3/4 with water. 3/4 जो है beaker को water के साथ भरा, 3/4 उसको water के साथ fill कर दिया. A test tube is also inverted. एक test tube invert करके रखी गई, inverted over the stem of the funnel. Funnel की जो stem थी उस पे एक test tube को भी invert करके रखा. You can see in this diagram.
देन द सेटअप इज केप्ट इन सनलाइट, अब इस सेटअप को सनलाइट में रख दिया, एंड आफ्टर सम टाइम्स बबल्स कुड बी सीन राइजिंग इन द टेस्ट ट्यूब, थोड़ी देर बाद में हमने ये देखा कि जो टेस्ट ट्यूब है उसमें बबल्स जो थे वो रेज हो रहे थे, तो टेस्ट ट्यूब इज देन रिमूव्ड केयरफुली, टेस्ट ट्यूब को वापस रिमूव करा गया केयरफुली, ग्लोइंग स्पिंचर इज इन्वर्टेड डीप इनटू इट, अब जो ग्लोइंग स्पिंचर था उसको इन्वर्टेड डीप उसके अंदर रखा गया, द ग्लोइंग स्पिंचर टर्न्स ब्राइटली बर्न्स ब्राइटली, जो स्पिंचर था वो कैसे ब्राइटली बर्न होना शुरू हो गया, विच डेमोन्स्ट्रेट्स दैट बबल्स appeared in the test tube are mainly of the oxygen gas. See, oxygen gas supports burning, right? We have already learned this कि हमें पता है कि ऑक्सीजन जो है वो सपोर्ट करती है बर्निंग को, एंड CO2 डजंट सपोर्ट बर्निंग। तो हमने क्या करा, ग्लोइंग स्पिंचर यानी कि स्पिंचर को जलाकर उसमें जब डाला तो क्या हुआ, जो और ज्यादा उसको वो अच्छे से ब्राइटली और ज्यादा अच्छे से बर्न होने लग गया। सो दिस प्रूव्स दैट द बबल्स अपीयर्ड, जो बबल्स हमें दिखे थे उस टेस्ट ट्यूब में वो कौन सी गैस के थे, ऑक्सीजन के थे, बिकॉज वहां पे फोटोसिंथेसिस हुआ, फोटोसिंथेसिस हुआ तो ऑक्सीजन रिलीज हुई थी। इट कंक्लूड्स दैट ऑक्सीजन गैस इज रिलीज ड्यूरिंग photosynthesis, and with this we can conclude that the photosynthesis जो होता है उसमें ऑक्सीजन जो होती है, ऑक्सीजन गैस जो है वो रिलीज होती है। Coming to the next one, see significance of photosynthesis, photosynthesis की significance हम पढ़ेंगे, why photosynthesis is important, what is the significance of that। The sugar produced during photosynthesis is either stored in the form of carbohydrate or used in the biosynthesis of other organic compounds। See, हमने ये पढ़ा कि जो जब फोटोसिंथेसिस होता है तो जो शुगर प्रोड्यूस होती है वो क्या होता है, इज आइदर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, या तो उसको कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में स्टोर कर दिया जाता है प्लांट में, ठीक है, और क्या होता है कि बायोसिंथेसिस ऑफ अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, बाकी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो असेंशियल है प्लांट के ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, उसको उनको बनाने में उसका यूज ले लिया जाता है। फोटोसिंथेसिस absorbs CO2, we have already learned this, CO2 absorb होती है because CO2 is essential factor for the process of photosynthesis and releases oxygen, oxygen क्या होती है, रिलीज होती है, and in this way it helps to maintain the बैलेंस बिटवीन O2 एंड CO2 लेवल्स इन द एटमॉस्फेयर। इससे क्या होता है, O2 और CO2 का जो दोनों गैसेस का जो लेवल है वो एटमॉस्फेयर में मेंटेन रहता है। ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज यूज्ड बाय एनिमल्स फॉर रेस्पिरेशन, जो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं प्लांट्स, हम ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, वो क्या करते हैं, उस ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर लेते हैं, ठीक है। सो कमिंग टू द नेक्स्ट वन, Olympiad bites. Plants are classified into sciophytes, shade-loving plants. Example: oxalis and Heliophilus. Heliophytes. See, plants को two parts में जो है divide किया है. Like plants have been divided into two parts. Because just now we learned about that why the intensity of light is playing an important factor as playing a role of important factor in the process of photosynthesis. So we will learn कि कौन से ऐसे plants हैं जिनको shade में रहना ज़्यादा पसंद है और जिनको sunlight ज़्यादा पसंद है. So the plants are divided into sciophytes. Sciophytes, shade-loving plants, and heliophytes. So the plants are divided into two types. The first type is sciophytes, that are shade-loving plants. क्या होते हैं, शेड पसंद होती है जिनको, लाइट इतनी पसंद नहीं होती है, shade-loving plants. Okay. And the example for this one is, see, example is oxalis. Example is oxalis. And heliophytes, sun-loving plants, जिनको sunlight पसंद होगी, sun-loving plants. Sun-loving plants. And what is the example for this one? What
Okay, so the plants are divided into two types, sciophytes and heliophytes. Sciophytes are shade loving plants, S for shade, S for sciophytes, and heliophytes are sun loving plants. Okay, so the example for sciophytes is oxalis, and for heliophytes the example is Dalbergia. Example is Dalbergia. Okay, and depending upon their ability or inability to tolerate high light intensity, इन दोनों को किस बेसिस पे डिवाइड किया गया? Why the plants are divided into two categories? What is the basis for this? The basis is that inability and ability to tolerate high light intensity. High light intensity यानी जो लाइट की इंटेंसिटी जो होती है उस बेसिस पे दो पार्ट्स में डिवाइड करा गया है कि उनकी एबिलिटी, लाइक स्कियोफाइट्स जो है, एग्जांपल ऑफ स्कियोफाइट्स ऑक्सैलिस प्लांट, तो क्या होगा कि वो हाई लाइट इंटेंसिटी को टॉलरेट नहीं कर पाएगा बिकॉज इट इज ऑलरेडी शेड लविंग प्लांट, तो वो हाई लाइट इंटेंसिटी को बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर पाएगा एंड द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विल बी डिक्रीज्ड इन दिस केस. Heliophytes are sun loving plants, so they can tolerate a high light intensity up to a particular specific range. So I hope you got this. Coming to the next one. Yes, so the next one is carbon dioxide. Carbon dioxide also plays an important role as a important factor for the process of photosynthesis. Increase in CO2 concentration in the atmosphere causes increase in the rate of photosynthesis. अगर इंक्रीज होती है CO2 की कंसंट्रेशन जो है, CO2 की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा. फोटोसिंथेसिस की रेट जो है वो बढ़ जाएगी. राइट? ओके. Then but very high concentration is toxic for the plants and inhabits photosynthesis. Very high concentration अगर CO2 की होगी तो वो कैसी होगी? टॉक्सिक होगी प्लांट्स के लिए and inhibits photosynthesis. यानी कि अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है अगर कंसंट्रेशन CO2 की तो क्या होगा? फोटोसिंथेसिस की जो रेट होगी एक बसी, अगर फोटोसिंथेसिस CO2 की इंटेंसिटी राइज हो रही है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो है रेट है उसकी वो इंक्रीज हो जाएगी, बट एट अ पर्टिकुलर लिमिट तक, है ना? जैसे हमने सनलाइट में भी बात करी थी, तो पर्टिकुलर लिमिट तक होगी. जैसे लाइट की इंटेंसिटी पे हमने बताया था कि एक पर्टिकुलर लिमिट तक भी CO2 की जो अगर CO2 का जो लेवल है वो इंक्रीज हो रहा है तो फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होगा, लेकिन एट अ पर्टिकुलर लिमिट. उसके बाद में क्या होगा? फोटोसिंथेसिस अगर CO2 बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन में बढ़ जाती है तो प्लांट्स के लिए क्या होगा? टॉक्सिक होगा और फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो इनहिबिट हो जाएगा, रुक जाएगा, नहीं होगा फोटोसिंथेसिस. ठीक है? यस. See the next one is water. Water में क्या होता है? The rate of photosynthesis is decreased if the plants are not supplied with required amount of water. अगर उन्हें proper adequate amount of water नहीं मिलता, कई बार होता है बहुत टाइम तक अगर हम कोई भी पर्टिकुलर प्लांट को पानी नहीं देते, थोड़े टाइम में वो जो प्लांट होता है वो डाई हो जाता है ना. तो why this happens? Because कि आपने पानी नहीं दिया, the proper adequate amount of water was not provided to the particular plant, and in that case the photosynthesis process didn't occur, and because of that the plant was not able to prepare its food and it got dead. Right? The stomatal pores remain closed under water deficient. क्या होता है? स्टोमेटल जो पोर्स होता है, ऑलरेडी टोल्ड यू, स्टोमेटा के दो गार्ड सेल्स होते हैं, हमने कल पढ़ा था, इन द प्रीवियस लेक्चर वी डिड डिस्कस दिस. तो क्या होता है? स्टोमेटल पोर्स यानी कि जो स्टोमेटा जो होते हैं वो क्या होते हैं? क्लोज्ड रहते हैं, बंद रहते हैं वाटर डेफिशिएंट कंडीशंस में, यानी कि वाटर नहीं है तो वो बंद रहते हैं, डेफिशिएंसी है वाटर की, एंड CO2 विल नॉट एंटर, एज अ रिजल्ट CO2 विल नॉट एंटर द लीव्स. और उसकी वजह से क्या होगा? वाटर की डेफिशिएंसी है, स्टोमेटल पोर्स ओपन ही नहीं हो रहे तो CO2 जो है वो प्लांट के अंदर आएगी कैसे, है ना? तो CO2 जो है वो प्लांट के अंदर नहीं आएगी, एंड इन दो फैक्टर्स इसके लिए फिर वापस रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे. वाटर भी नहीं प्रोवाइड किया गया तो उसकी वजह से स्टोमेटल पोर्स ओपन नहीं हुए, तो CO2 जो है वो प्लांट ने ली नहीं, एंड प्लांट ने नहीं ली तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं हुआ. नेक्स्ट वन. Okay, so the next one is
सिंथेसिस ऑफ न्यूट्रिएंट्स अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगा तो ऐसे कुछ अलग अलग न्यूट्रिएंट्स भी बनेंगे। क्या होंगे वो न्यूट्रिएंट्स? सी, इन एडिशन टू कार्बोहाइड्रेट्स plants also require other nutrients such as proteins and fats for their proper growth and development। प्लांट को किस किस की नीड होती है? प्रोटीन्स की भी होती है, कार्बोहाइड्रेट्स की तो होती ही है, ठीक है, और प्रोटीन्स की भी होती है प्लांट्स को नीड, और किसकी होती है? फैट्स की भी होती है, राइट। सो these nutrients are made up of carbon, hydrogen एंड ऑक्सीजन। इन क्लास 6 यू हैव लर्न दिस कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो 3 एलिमेंट्स के बने होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। बट सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन ऑल्सो रिक्वायर्स नाइट्रोजन। लेकिन प्रोटीन का जब सिंथेसिस होता है तो उसमें नाइट्रोजन गैस की भी नीड होती है। ओके, तो प्रोटीन फैट्स तो बन जाएंगे, कार्बोहाइड्रेट्स भी बन जाएंगे, लेकिन प्रोटीन्स तो नहीं बन पाएंगे ना। और प्रोटीन्स अगर नहीं बन पाएंगे तो फिर प्लांट को एडिक्वेट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड नहीं होंगे। तो प्रोटीन्स किसकी हेल्प से बनते हैं? व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स? नाइट्रोजन गैस इज रिक्वायर्ड. So the plant will need this gas also. Though nitrogen is present in abundance in gaseous form in the air, plants cannot use this free nitrogen. Although we already know कि गैस के एयर में सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन जो है वो कौन सी गैस की है? नाइट्रोजन की है। तो नाइट्रोजन तो it is already available for the plants, but they cannot use this free nitrogen which is available around us in the atmosphere. वो उसको यूज नहीं कर पाते। नाइट्रोजन can be obtained in two ways by the plants. तो नाइट्रोजन जो है वो 2 ways में plants जो है वो क्या obtain कर सकते हैं? Which are those 2 ways? Some nitrogen fixing bacteria, rhizobium, present in the soil fix the atmospheric nitrogen into a soluble form which is then absorbed by the plants through the roots. क्या होता है कि some nitrogen fixing bacteria जैसे कि राइजोबियम है ना, राइजोबियम जैसे है वो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इनका वर्क क्या होता है? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का, वो दे डू नाइट्रोजन फिक्सेशन बिकॉज जो फ्री नाइट्रोजन जो प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में वो प्लांट से नहीं ले सकते है ना, तो उसको नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, जैसे कि राइजोबियम इज अ एग्जांपल, दिस इज अ इंपॉर्टेंट एग्जांपल, राइट। प्रेजेंट इन द सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू सॉल्यूबल फॉर्म विच इज देन एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स थ्रू द रूट्स। क्या होता है? जो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसको ये क्या करते हैं? सॉल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं और फिर प्लांट जो है रूट्स के थ्रू वाटर के साथ में उस नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। And others is farmers and nitrogen rich fertilizers. Farmers add nitrogen rich fertilizers to the plants to increase its fertility. Farmers, you must have heard कि farmers भी जो होते हैं manure, different type of manure and fertilizers use करे जाते हैं crops के लिए, plants के लिए, है ना, farmers use करते हैं। Why they use that? उसमें क्या होता है? जो nitrogen rich fertilizers होते हैं उसमें nitrogen available होती है, वो soil की fertility होती है जो soil की उसको increase कर देते हैं। So that's why they use the nitrogen which is use the fertilizers which are rich in nitrogen. Okay, so what happens is the nitrogen fixing bacteria जो है, there are 2 types in which the nitrogen can be absorbed by the plants. The one way is that the nitrogen fixing bacteria rhizobium does this work, and the second one is that the farmers use fertilizers which are rich in nitrogen to provide the adequate amount of nitrogen to the particular plant. So this was about all the photosynthesis, about the process of photosynthesis, what happens during the process of photosynthesis, which reaction takes place, what are the important factors responsible for the process of photosynthesis. We learned completely about this all, right? And the next will be about heterotrophic nutrition which happens in animals, even in the human beings also, and we will cover this in the next part, in the next lecture. I hope you got this all. Thank you so much.